عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں انصاری فہمیدہ ابو دجانہ، معاون معلمہ، دیونار کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر 2 سے آج کی تعلیمی نشست میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ہماری ایکٹیو بیٹ آفیسر محترمہ عارفہ سلیم شیخ صاحبہ اور ہمارے صدر مدرس فاروقی صابر الدین افسر الدین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیں اس تعلیمی سفر کے راہبر کی صورت میں قبول کیا ہے۔ آج میں جماعت ہفتم کے مضمون انگلش کی تدریس کا مواد لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایکٹیویٹی بیسڈ آن لرننگ۔ بیٹا، آپ کی انگلش کی ٹیکسٹ بک میں ہر سبق کے آخر میں انگلش ورک شاپ ہوتا ہے، جس کی مدد سے ہم حاصل کردہ تعلیمی مواد کا ریویو لیتے ہیں۔ آج کا ورک شاپ TOW، دیکھیے یہاں اسکرین پر دکھایا گیا ہے، TOW اس ایبریویشن سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے 2 منٹس آف اورل ورک۔ 2 منٹس آف اورل ورک، اورل لفظ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے زبانی کام ہے۔ اورل ورک میں جو ہے ہم زبانی طور پر عملی کام کرتے ہیں، سرگرمی کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں اس 2 منٹ اورل ورک کے ذریعے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارا 2 منٹ اورل ورک یہ ہے، ٹیل ورڈز بگننگ with each letter of the given words within 2 minutes۔ ٹیل ورڈز یعنی الفاظوں کو کہنا ہے۔ کون سے الفاظوں کو کہنا ہے؟ بگننگ with each letter، یعنی اس الفاظ میں جو آپ کی اسکرین پر دیا جائے گا یا آپ کو بتایا جائے گا، اس ورڈز کے اندر جتنے بھی لیٹر دیے ہوئے ہیں، اس لیٹر سے ہمیں ایک نیا ورڈ بنانا ہے within 2 منٹس، یعنی جلد سے جلد 2 منٹ کے اندر۔ 2 منٹ کے اندر ہمیں دیے ہوئے ورڈز کے ہر لیٹر سے ایک نیا ورڈ بنانا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اگزامپل دیا ہے ٹائم۔ اب ٹائم میں کتنے لیٹر ہیں؟ 4 لیٹر ہیں۔ TIME کتنے لیٹر ہیں؟ 4 لیٹر ہیں۔ اب یہاں ہر لیٹر سے ایک نیا ورڈ بنا کر بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کے کو نمونے کے طور پر بتایا گیا ہے، اسی طرح آپ کو آگے مزید جو ہے وضاحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس جو ہے 2 منٹ کی ایکٹیویٹی کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ دیکھیے TIME، T فار ٹی، I فار انک پاٹ، M فار ماؤس اور E فار انجن۔ تو یہاں پر اسکرین پر جو آپ کو ورڈ دیا ہے ایگزامپل کے طور پر ٹائم، اس میں 4 لیٹر تھے جس سے ہم نے یہ 4 ورڈز بنائے ہیں۔ اب اسی طرح ہم آگے جو ہے کچھ ورڈ یہاں پر دیکھو دیے ہیں، ورڈز اس اسکرین پر دیکھو، یہاں پر کتنے ورڈز دیے ہیں آپ کو؟ 6 ورڈز یہاں دیے ہیں۔ پہلا ہے باسکٹ، لائٹ، ارتھ، ٹربن، سلیپی اور پیجن۔ اب یہاں ہر ورڈ میں 5 یا 6 لیٹر موجود ہیں۔ باسکٹ میں دیکھیے 6 لیٹرز ہیں، لائٹ میں 5 لیٹرز ہیں، ارتھ میں جو ہے اس میں بھی 5 لیٹرز ہیں، ٹربن میں 6 لیٹرز ہیں، سلیپی میں 6 لیٹرز ہیں، پیجن میں 6 لیٹر۔ موسٹلی جتنے بھی ورڈز ہیں 5 اور 6 لیٹرز پر ڈیپینڈ ہیں، اس سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں کرنا یہی ہے کہ ہر ورڈ کے ہر لیٹر سے ہمیں ایک نیا ورڈ بنانا ہے۔
जैसे यहाँ पर देखिए पहला वर्ड है बास्केट। अब इसमें 6 लेटर्स है, BASKET। हमें हर लेटर से एक नया वर्ड बनाना है 2 मिनट में। B फॉर ब्रेड, A फॉर एरो, S फॉर शुगर, K फॉर कीबोर्ड, E फॉर एजुकेशन, T फॉर टॉपिक। अगला वर्ड है हमारा लाइट। इसमें भी देखिए कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, LIGHT। L फॉर लायन, I फॉर इंडिया, G फॉर गोट, H फॉर हेयर, T फॉर टाइगर। अगला वर्ड है हमारा अर्थ, ज़मीन। अर्थ का मतलब होता है ज़मीन। इसमें देखिए कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, EARTH। E फॉर easy, A फॉर अटैक, R फॉर रैबिट, T फॉर ट्रस्ट, H फॉर हॉर्स। यहाँ देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल का एक वर्ड दिया हुआ है, टर्बन। टर्बन, TURBAN। कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो हर लेटर से हमको क्या करना है, एक नया वर्ड बनाना है। T फॉर टर्टल, U फॉर यूनिक, R फॉर रेनबो, B फॉर बलून, A फॉर ऑसम एंड N फॉर नेबर। इसके बाद है देखिए यहाँ पर वर्ड स्लीपी, SLEEPY, स्लीपी। यहाँ पर भी बेटा 6 लेटर्स हैं, SLEEPY। S फॉर शैडो, L फॉर लवली, E फॉर एक्सक्यूज, E फॉर ईस्टर, P फॉर पनिश एंड Y फॉर ईयर। अब हमारा यहाँ लास्ट वर्ड है, जो हमने 6 वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, उसमें से ये लास्ट वर्ड है पिजन। पिजन यानी कबूतर। यहाँ पर भी ये वर्ड भी जो है आप चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल से रिलेटेड रखता हुआ है, आपने उसमें देखा है, आपने उसमें पढ़ा है। P फॉर पिजन यहाँ लिखा है, जिसमें 6 लेटर हैं, PIGEON। P फॉर पिंक, हमें नया वर्ड बनाना है, इसलिए P फॉर पिंक, I फॉर इंक पॉट, G फॉर ग्लो, E फॉर एपिक, O फॉर आउल एंड N फॉर नेस्ट। ये यहाँ हमारी इस एक्टिविटी को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसे और मज़ीद बेहतर तौर पर हमें करना है। देखिए जब अभी हमने आपको इस एक्टिविटी के बारे में अच्छी तरह से समझाया, सिखाया, आपने उसे ज़रूर ज़हन नशीन किया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि राइट वर्ड्स बिगिनिंग विथ ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में सीखा और समझा, हमने वजाहत की, आपको समझाया, आप उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। करना आपको ये है कि जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, बिल्कुल जिस तरह आपके सामने वजाहत पेश की गई है, बिल्कुल उसी तरह हर वर्ड में आने वाले हर लेटर से आपको एक नया वर्ड बनाना है और कोशिश ये करना है कि जल्द से जल्द 2 मिनट में आप जो है उस वर्ड में पाए जाने वाले हर लेटर से जो है एक नया वर्ड बना सकें। जैसे अब यहाँ देखिए पहला वर्ड है इलेक्शन। इसमें कितने लेटर है, ELECTION। E फॉर एलिफेंट, L फॉर लायन, E फॉर ईयर, C फॉर कैट, T फॉर टाइगर, I फॉर इंक पॉट, O फॉर ऑरेंज, N फॉर नोज़। इस तरह आपको जल्दी जल्दी हर वर्ड में आने वाले लेटर से 2 मिनट में एक नया वर्ड जो है बनाना है। यहाँ पर देखिए 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आप ओरली बनाइए या हो सके तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख कर बनाइए, और इसका जो है फ़ोटो खींचिए अगर आप लिख रहे हैं तो, और अगर
ओरली बना रहे हैं तो वॉइस मैसेज बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। मैं आपका जो है काम चेक करूँगी और आपकी जो है अगर कोई गलती होगी आपकी रहनुमाई करूँगी, आपको बताऊँगी कि आपने सही किया है या नहीं। अब यहाँ देखिए, ये जो एक्टिविटी है आपके सामने जब दी जा रही है, आपको जो समझाया जा रहा है, ये TOW पर बेस्ड है। मैंने अभी आपको बताया था कि इस एब्रीवेशन का मतलब होता है 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। हमको ओरल वर्क करना है 2 मिनट में, जितनी जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। इससे हमें इंग्लिश ज़बान पर उबूरियत भी हासिल होगी, हम नए नए अल्फाजों से रूशनास होंगे, हमें नए नए अल्फाज पता चलेंगे और जो है हमारे पास इंग्लिश के अल्फाजों का वर्ड गार्डन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ होमवर्क 2 है, राइट एज मैनी एज पॉसिबल। लिखिए एज मैनी एज पॉसिबल, यानी कि जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप मुमकिन हो सके रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड वर्ड आपको बनाना है विद इन 2 मिनट्स। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको राइटिंग में दिया है, यहाँ ओरली नहीं है, यहाँ राइटिंग में है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जो है कोशिश ये करना है कि आप जो है हर वर्ड के अंदर जितने भी मौजूद लेटर्स हैं उन लेटर्स से नया वर्ड 2 मिनट के अंदर बना लें। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए दिया है लाइट। अब लाइट में जो है यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, LIGHT। अब लाइट से जो है हमको क्या करना है, लाइट से रिलेटेड वर्ड बनाना है, लाइट से रिलेटेड वर्ड बनाना है, उससे ताल्लुक़ रखते हुए वर्ड बनाना है। पिछली मर्तबा हमने क्या किए थे कि वर्ड्स के अंदर पाए जाने वाले लेटर से एक नया वर्ड बनाए थे। अब इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि जो भी वर्ड आपकी स्क्रीन पर है या जो भी वर्ड आपको दिया जाता है उससे रिलेटेड वर्ड आपको बनाना है, उससे ताल्लुक़ रखता हुआ वर्ड बनाना है। अब जैसे यहाँ लाइट से रिलेटेड वर्ड यहाँ है ब्राइट, स्टार, डे, बल्ब, लैम्प, कैंडल, सन, लैंटर्न। ये देखिए, लाइट का मतलब होता है रोशनी, रोशनी से ताल्लुक़ रखते हुए वर्ड, ब्राइट यानी उजाला, स्टार सितारा है ना, तारे, डे दिन में भी उजाला रहता है, बल्ब भी हमें उजाला देता है, लैम्प से भी उजाला मिलता है, कैंडल से भी हमें रोशनी मिलती है, सन भी जो है रोशनी बिखेरता है और लैंटर्न यानी लालटेन जो होती है वो भी हमें हमारे अंधेरे घर को रोशन करती है। तो लाइट से रिलेटेड वर्ड ये थे। अब इसी तरह यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको बहुत सारे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हॉट, कोल्ड, स्वीट, सार, कंप्यूटर, स्कूल, ट्री, विलेज, रेलवे, फॉरेस्ट। तो इन तमाम वर्ड्स से रिलेटेड आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं आप उन्हें बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि एक वर्ड के लिए 2 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। अब यहाँ देखिए हॉट का मतलब होता है गर्म, कोल्ड ठंडा, स्वीट मीठा, सार यानी खट्टा, कंप्यूटर, आप अच्छी तरह कंप्यूटर से वाकिफ़ हैं कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके सामने जो ये सब लेक्चर ऑनलाइन दे रहे हैं ये कंप्यूटर उसमें बड़ा मददगार साबित होता है। कंप्यूटर के ज़रिए हम बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं। स्कूल, ट्री यानी दरख्त, विलेज गांव, रेलवे आप पता है रेल के ज़रिए आप सफ़र करते हैं, रेल में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो आपको इन सब से ताल्लुक़ रखते हुए अंग्रेज़ी के ही वर्ड लिखना है, ना कि जो है आप उन्हें उर्दू में लिखें, अपनी मादरी ज़ुबान में लिखें। यहाँ आपको हॉट है, हॉट चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें गर्म होती है बताइए। हाँ, हॉट चीज़ें होती है जैसे टी है, कॉफ़ी है,
اور کیا ہے اور بتائیے؟ गर्म चीज़ें, हीटर है, गीज़र है, ये सब चीज़ें जो है हॉट जो है चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हुई है। अब कोल्ड चीज़ें हैं जैसे आइस है, बर्फ़, आइसक्रीम है, और क्या है फ्रिज के अंदर, फ्रिज का डोर खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर से चीज़ हम जो भी निकालते हैं, कौन कौन सी चीज़ें निकालते हैं, क्या चीज़ें ठंडी होती है? वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सब ठंडा होता है। इसी तरह स्वीट, सार, कंप्यूटर, स्कूल, ट्री, विलेज, रेलवे, फॉरेस्ट, इन सब से ताल्लुक़ रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज अंग्रेज़ी में लिखने हैं। उसके बाद चलिए देखिए क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में देखिए एक स्कूल का कैंपस बताया गया है, एक स्कूल का कंपाउंड है जहाँ कुछ बच्चे जो है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विद इन 2 मिनट्स। ऑब्जर्व यानी मुशाहिदा कीजिए, द पिक्चर ये जो तुम आपके सामने नज़रों के सामने ये जो पिक्चर दी गई है इसका मुशाहिदा कीजिए, एंड नेम द थिंग्स, और इस तस्वीर में आपको जो भी चीज़ें थिंग्स चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको जो है 2 मिनट में आपको बताना है। ये काम आप वॉइस मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विद इन 2 मिनट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग, ट्री, गेट, वॉल, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, बैग, बॉटल, शूज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको तवज्जो और ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने बहुत सी चीज़ों के नाम हैं। आप उन चीज़ों के नाम को याद करके फटाफट 2 मिनट में बोलते जाइए और जो है अपना वॉइस मैसेज तैयार करके मुझे भेजिए। और अगर आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख कर भी भेजें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और समझती हूँ कि आपको जो है ये तमाम बातें, ये तमाम आज की तदरीसी वजाहत बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जो है इस तदरीस को, इस वीडियो को जो है बार बार देखें और उसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसी तरह के और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लेकर मैं आपके सामने फिर हाज़िर होंगी और आपको समझाऊंगी कि किस तरह जो है एक्टिविटी को जो है किया जाता है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एट योर होम विथ योर पेरेंट, विथ योर गार्डियन, और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार फिर एक सूदमंद कारामद तदरीसी मवाद के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।